Hello everyone. Today we are going to be doing session 4, duties and responsibilities of a sales associate, which is part of unit 1. This is the last session of unit 1. So today, as I said, हम देखेंगे हमारे सेल्स एसोसिएट का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहते हैं. A sales associate is also referred to as a customer services associate. A sales associate is responsible for all sales activities and sales associate job duties, from greeting customers to answering questions, offering assistance, suggesting items, lending opinions, and providing product information. तो जो हमारा सेल्स एसोसिएट होता है उसको हम कस्टमर सर्विसेज एसोसिएट के नाम से भी जानते हैं और इसके बहुत सारे काम रहते हैं. तो कस्टमर्स को ग्रीट करना, उनके जो भी प्रश्न है वो जवाब देना, असिस्टेंस देना, उनकी मदद करना, उनको आइटम्स बताना, अपने ओपिनियंस देना, तो ये सब बहुत काम रहते हैं सेल्स एसोसिएट के. Individual responsibilities as a sales associate may include demonstrating outstanding customer service and selling skills, keeping the selling floor stocked with merchandise, assisting in display of merchandise, or organizing the selling floor and stock areas. तो एज अ सेल्स एसोसिएट आपको कस्टमर सर्विस भी करना पड़ेगा, अच्छे से बेचने का आप में हुनर भी होना चाहिए, आपका जो सेलिंग फ्लोर है वहां पे आपका मर्चेंडाइज अच्छे से होना चाहिए, और जो मर्चेंडाइज है उसको सुंदर से सजा के अपने रिटेल स्टोर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना है. तो ड्यूटीज क्या रहती हैं ऑफ अ सेल्स एसोसिएट? A sales associate deals with customers to provide for their needs regarding retail products. They also deal with and help in resolving customer complaints. तो अगर आप कस्टमर सेल्स एसोसिएट हैं तो आपको कस्टमर के साथ मिलना पड़ेगा, उनके जो भी जरूरत है रिटेल प्रोडक्ट्स की वो समझ के उनको देना पड़ेगा. और अगर कोई भी कस्टमर कंप्लेन करता है, किसी को भी कोई दिक्कत है, तो उनको हेल्प भी करना है. So a sales or customers associate may assist customers to resolve their problem. Usually, a sales or customer service associate gathers information through a telephone call. तो इनका काम क्या रहता है? सबसे पहले handling problems. Customer inquiries involve complaint handling by sales associate. Sometimes sales associates solve customer problems or propose some solutions. Sales associate ensure that the complaints filed by customers are valid and solved within bounds of their authority. तो यहाँ पे कस्टमर के जो भी दिक्कतें आती हैं वो फोन करते हैं और सेल्स एसोसिएट से बात करते हैं या फिर उनसे मिलते हैं. तो जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो कोशिश इनकी यही रहती है कि जितना उनका हो सके उनकी प्रॉब्लम को खत्म करे, उनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करे. दूसरा काम इनका रहता है सेल्स में असिस्ट करना. Sales associate help customers identify and purchase products they desire. Their duties include selling, restocking, and merchandising. The goal is to provide high-class customer service and to increase company's growth and revenue through sales maximization. तो कोशिश यहाँ क्या रहेगी? कस्टमर्स क्या चाहते हैं, हमारे ग्राहक क्या चाहते हैं, उन्हें वो प्रोडक्ट दिया जाए. अगर स्टोर खाली हो रहा है तो रीस्टॉक किया जाए, अपना सामान अच्छे से सजाया जाए, कस्टमर्स को अच्छे से डील किया जाए और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करके अपनी कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ाया जाए और रेवेन्यू भी बढ़ाया जाए, अपनी सेल्स बढ़ाते बढ़ाते. साथ में क्लरिकल टास्क भी रहते हैं सेल्स एसोसिएट के. उनको बिल्स अपने हैंडल करने पड़ते हैं, मर्चेंडाइज रिसीव करना पड़ता है, पेमेंट्स लेनी पड़ती है, ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, तो ये सब बहुत काम इनके ये भी रहते हैं. और जॉब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. All duties of a sales associate largely depend on the type of retail store. But the duties which are specific to their job role include greeting customers, responding to questions, improving engagement with merchandise, and providing outstanding customer service, operating cash registers, managing financial transactions, and balancing jobs. तो job specific अगर ये particular काम कर रहे हैं स्टोर में तो इनके बहुत सारे अपने काम के हिसाब से इनको करना पड़ता है. जैसे ग्रीटिंग कस्टमर्स आते हैं, उनको नमस्ते हेलो के साथ आपको ग्रीट करना है, उनके जो भी प्रश्न है उनका जवाब देना है, मर्चेंडाइज जो है उसको अच्छे से सजाना है,
कस्टमर सर्विस अच्छे से देना है, और जो हमारे कैश रजिस्टर्स है जहाँ पे हम अपने पैसों का लेन देन करते हैं उसको अच्छे से संभालना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं हमारे सेल्स या कस्टमर सर्विस एसोसिएट की? सबसे पहले तो उन्हें कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो ये फेस टू फेस इंटरैक्शन भी हो सकता है, फोन के थ्रू भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, और कई बारी हमारे फोन और इंटरनेट बेस्ड एसोसिएट्स जो हैं वो घर से भी काम करते हैं। फिर आपको वर्किंग डायरेक्टली विद कस्टमर्स भी रहता है। आप कस्टमर जो आपका आता है आपके स्टोर में उसके साथ आप डील करते हैं। उनकी कोई दिक्कत हो तो यू हैव टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ कस्टमर्स। तो अगर इनकरेक्ट प्राइस हो गया या कुछ भी वापस करना है तो उसको भी सॉल्व करेंगे, और कस्टमर्स को हम सुनेंगे भी। एवरी कस्टमर सर्विस एसोसिएट मस्ट लिसन टू द कस्टमर। तो इफेक्टिव लिसनिंग से कस्टमर के प्रॉब्लम्स आराम से जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। एंड यू हैव टू रिमेन फ्रेंडली एंड पोलाइट। The sales associate should behave politely with customers. तो आप अच्छे से उनसे बात करेंगे, उनके साथ डील करेंगे तो वो बार बार आना भी चाहेंगे आपके दुकान में। स्पेशल एक्टिविटीज रहती हैं इन लोगों के लिए, जैसे आपको तैयार रहना पड़ता है फॉर कस्टमर इंक्वायरीज। कस्टमर इंक्वायरीज का जवाब देना पड़ता है। जो भी उन्होंने पूछा है आपने क्या जवाब दिया उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, और अपना क्वालिटी सर्विस को इम्प्रूव करना पड़ता है। अपना जॉब नॉलेज को अपडेटेड रखना होता है, और कुछ भी अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज रहे जिससे आप आगे बढ़ सके उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके साथ आपके सेल्स एसोसिएट जो है उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए? उसके पास प्रोडक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज का क्या मतलब है? जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो भी उनके डिपार्टमेंट में है या उनके स्टोर में है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में उनको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, और जिसके साथ वो स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना, उनको समझाना, वो भी एक आना चाहिए। डेटा एंट्री भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन भी एनालाइज करना हो सकता है। वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी होना होता है। रिपोर्टिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। प्रोसेस को भी मैनेज करना है। जनरल कंसल्टिंग, मल्टीटास्किंग, ये बहुत सारे सेल्स एसोसिएट के स्किल्स रहते हैं। तो अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो मनी हैंडलिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स, पर्सनल मास्टरी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे आपके बहुत सारे स्किल्स रहते हैं जो इनको ये हुनर अपने अंदर रखना पड़ता है। तो इसके साथ ही हमारा सेशन 4 यूनिट 1 का खत्म होता है, और हमारा पूरा यूनिट 1 के सारे सेशंस भी हम कर चुके हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें सेशन 1, 2 एंड 3 यूनिट 1 के हमने किए हैं, और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप पूछ भी सकते हैं। So thank you so much for giving your time and watching this video. Have a lovely day.